Okay, our next chapter is chapter 13. I think it is the most easiest chapter because we will not learn anything new in this chapter. As its name says, relevant cost for the decision making. You already knows what is the relevant cost, what is irrelevant cost. We have studied their definitions in chapter 2 probably, like opportunity cost, sunk cost, differential cost. We have studied these concepts. So the concepts will be the same as the chapter 2, but the application will be little bit different. So in the chapter 2, we have studied these concepts. In the chapter 13, we will apply these concepts to the different situations, how we can analyze the relevant cost एंड डिसीजन मेकिंग. आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो एस्टिमेशन पढ़ रहे होंगे. स्टार्ट कर दिया चैप्टर आपने? यस सर. तो उसके अंदर भी यही जो रेलिवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वही यूज़ होगा, क्योंकि चैप्टर 13 जो चैप्टर है कैश फ्लो एस्टिमेशन का वो भी डिसीजन मेकिंग का है. So for the decision making you have to identify what is relevant to the decision and what is irrelevant. जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उन्हीं को आप इंक्लूड करेंगे, जो इररेलिवेंट चीज़ें हैं उनको इंक्लूड करने का फ़ायदा नहीं है. जी, आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? जी सर. Okay, so first learning objective of this chapter is identify relevant and irrelevant costs and their benefits in a decision. So what is relevant cost? Any cost that differ between alternatives. If we have two alternatives and we have to choose one out of them, then only the cost which differs between two alternatives is matters. The cost which remains same in both alternatives is not a relevant cost, because we choose option 1 or we choose option 2, the cost will remain same. So that cost is not a relevant cost. तो अगर कोई कॉस्ट चेंज हो रही है दो ऑप्शंस के दरमियान तो वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी. अगर कोई कॉस्ट चेंज नहीं हो रही तो वो इररेलेवेंट कॉस्ट होगी. वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट. The differential cost is the cost difference between two alternatives. So differential cost is the relevant cost. If the cost remains same between two options, then the cost is irrelevant. We don't have to worry about that kind of cost. We don't have to account it for our decision making. So cost that can be eliminated. If we choose one option, some cost will be eliminated. So because these costs are changing, if we choose one option, that's why these are relevant costs. By choosing one alternative over another are avoidable costs. Avoidable costs are relevant costs. For example, we are using an old machine. If we purchase a new machine, then some repair cost can be avoided. So that repair cost, because that repair cost is changing between the two alternatives, so that cost is a relevant cost. Another example, if we have one machine and we want to make a decision to buy a new machine, the old machine can give us a revenue of 1 million, and the new machine can also give us revenue of 1 million. In both options, the revenue is same. It is not changing. So that kind of cost or revenue is not relevant because it is not changing. If we choose one option or option 2, the revenue will remain the same. So we have to worry only about the differences. Whatever remains the same, we don't have to worry about it. So
unavoidable cost, meaning they would not change regardless what decision you make. So for example, you have to pay university fee. Either you are taking classes at home or you are coming to university. Then that cost is unavoidable. Okay, so that cost is kind of irrelevant cost because you have to pay it. This will not change either you come to university or not. So we have studied these kind of cost in the heads as sunk cost, which has been paid in the past, and we continue to do business or not, it doesn't matter. Future costs that do not differ between the alternatives, these are also unavoidable costs. So basically हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है अवॉइडेबल कॉस्ट और एक है अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो इम्पेक्ट करता है इन कॉस्ट के ऊपर, या तो ये इंक्रीज होंगी या ये डिक्रीज होंगी या ये एलिमिनेट हो जाएंगी। तो हमारे क्योंकि डिसीजन मेकिंग के ऊपर या हमारे डिफरेंट किस्म के ऑप्शन चूज करने के ऊपर ये कॉस्ट चेंज हो रही हैं, लिहाजा ये कॉस्ट मैटर करती हैं और ये हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि वी कैन इफेक्ट ऑन दीज कॉस्ट, वी कैन चेंज देम। सेकंड कैटेगरी जो है अनअवॉइडेबल कॉस्ट की, हम कोई भी डिसीजन ले लें हम इन कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिहाजा ये कॉस्ट तो है, ये तो एक रूटीन मैटर है, ये तो आपको पे करना ही करना है, आप कोई भी ऑप्शन ले लें। तो इस किस्म की कॉस्ट क्योंकि ये सारे अल्टरनेटिव्स में सेम रहेंगी, हम कोई भी काम कर लें, आप ऑनलाइन क्लास ले लें या आप फिजिकली यूनिवर्सिटी में आके क्लास ले लें, ये जो कॉस्ट है ये अनअवॉइडेबल है, जिसको हमने यूनिवर्सिटी फ़ी कहा। तो क्योंकि अनअवॉइडेबल है और ये हमारे दोनों ऑप्शंस के अंदर सेम रहती है, तो इस कॉस्ट को हम इररेलेवेंट कॉस्ट कहेंगे और इसकी अकाउंटिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं जी। एनी क्वेश्चन between avoidable and unavoidable cost? जी सर, जो हमारे रेंटल्स होते हैं वो हमारे संक कॉस्ट होती है, मतलब अनअवॉइडेबल होती है। कौन से क्या चीज आप पूछ रहे हैं, दोबारा पूछें। सर, जो रेंटल्स होते हैं, रेंटल्स, अगर तो रेंट चेंज हो रहा है दो अल्टरनेटिव्स के दरमियान तो फिर तो वो रेलिवेंट कॉस्ट है। अगर रेंट आपका चेंज नहीं हो रहा तो वो इररेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। हमने देखना है चेंज को देखना है, अगर तो चेंज हो रहा है तब तो ठीक है। मसलन आपने आज जो है अपनी कंपनी का एक्सपेंशन का एक प्लान बनाया, ठीक है, एक डिसीजन है। अब आपने देखना है कि अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आप कुछ नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, नई मशीनरी खरीद के लाएंगे, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो रेंट आप पे कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग का, कि आपकी एक्सपेंशन जो है अगर तो इसी बिल्डिंग के अंदर जो है वो हो सकती है और आपको कोई एक्स्ट्रा रेंट नहीं पे करना, तब तो आपका रेंट जो है वो इररेलेवेंट है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है और आपको शायद कोई नई बिल्डिंग रेंट लेनी पड़ेगी, तो फिर जो आपका रेंट का एक्सपेंस है, जितना आपने एक्स्ट्रा रेंट पे करना है एक्सपेंशन की वजह से, वो रेलिवेंट कॉस्ट हो जी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, so here we have an example. Mujtaba, where are you? Yes, sir. Please read this slide. सर, ये जो identifying relevant cost, Yes. ये Cynthia, a Boston student, is considering visiting her friend in New York. She can drive or take the train. The car, Okay, it is stop too. here. So first information we have is there is a student
Cynthia, and she wants to visit her friend in New York. And she has two options. One is drive. She has a car, she can drive. And the next is take a train. So we have to choose between these two options. We have to make a decision. Whichever option is cheaper, she will take that option. If the driving the car is cheaper, she will take that one. If the train is the cheap, she will take the train. G, next. By car, it is 230 miles to her friend's apartment. Okay, She is so trying to decide New which York is 230 miles away from her apartment. G. She is trying to decide which alternative is less expensive and has gathered the following information. So these are the following information. जी पढ़ें इसको. Annual Number 1, annual straight line depreciation on car, $280. So there is a depreciation. She is paying depreciation annually, 280,000. So we have two options. If she drives, she has to pay the depreciation, which is 2,800, because depreciation is fixed, right? If she takes the train, she still has to pay the depreciation, right? Because depreciation is fixed. It doesn't depend on the activity of the machinery or the vehicle. So she has to pay that depreciation. Either she drives by car or she takes the train. So if the depreciation is fixed and it remains the same in both the option, will it be a relevant cost or irrelevant cost? What do you think? जी ये रेलिवेंट कॉस्ट होगी या इररेलेवेंट कॉस्ट होगी डेप्रिसिएशन जो है? So relevant ही होगी. रेलिवेंट कैसे होगी? हमने बात की है कि जो कॉस्ट चेंज होती है दो अल्टरनेटिव्स में वो रेलिवेंट है, जो कॉस्ट सेम रहती है वो रेलिवेंट नहीं. सो डेप्रिसिएशन जो है वो हम कोई भी ऑप्शन अगर चूज करते हैं वी स्टिल हैव टू पे दैट डेप्रिसिएशन. तो ये कॉस्ट क्योंकि दोनों ऑप्शंस में चेंज नहीं हो रही, कॉमन है, कॉमन चीजें कैंसल आउट हो जाती हैं. ठीक है, ऐसे ही है. बट यहाँ पे सर उसने तो depreciation on car लिखा हुआ है. ट्रेन का तो नहीं डेप्रिसिएशन लिखा है है. ना. हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की कि ये एनुअल होती है. डेप्रिसिएशन कभी आपकी एक्टिविटी पे तो डिपेंड नहीं करती ना, ये एक्टिविटी पे डिपेंड करती है. मैम एक्टिविटी पे भी सर डिपेंड करती होगी क्योंकि नहीं जितना वो करती, नहीं ज्यादा. करती. ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन है, हर साल आपने इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हर साल, क्योंकि इक्वल चार्ज करनी है तो आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है, वी डोंट हैव एनी सच मैकेनिज्म टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज. इट इज स्ट्रेट लाइन और ऑन द बेसिस ऑफ मैकर्स. ठीक है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कोई मेजर नहीं है हमारे पास. तो क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तो ये रेलिवेंट नहीं हो सकता. सेकंड पे आए, कॉस्ट ऑफ गैसोलीन है, इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? सर ये तो एक्टिविटी पे डिपेंड करेगी. ये डिपेंड करता है. अगर हम इफ वी विल ड्राइव विल हैव a higher cost of gasoline, we will have some cost of gasoline, we can say. If we take a train, so there is no cost of gasoline. So this cost differs between two alternatives. Because this cost is changing between the two alternatives, then
we must account for these kind of cost. This is a relevant cost. ठीक है, क्योंकि change हो रही है. What about the third one? So, annual cost of auto insurance and license. सर ये भी सर कार में ड्राइविंग होगा, ट्रेन में नहीं होगा. नहीं, बहुत ऑटो इंश्योरेंस जो है वो तो हम करवा चुके हैं साल की. अब हम कार को साल में ड्राइव करें या ना करें, हमने ये कॉस्ट तो पे कर दी हुई है. क्या ख्याल है? इसमें कोई चेंज तो नहीं आएगा. अगर हम ड्राइव करते हैं या ट्रेन लेते हैं, हमारी इंश्योरेंस की वैल्यू तो सेम रहेगी. यस सर. तो क्योंकि दिस कॉस्ट इज सेम between both the alternatives, therefore it is also irrelevant cost. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन पे अगर हम जाएं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर. व्हाट अबाउट दिस वन? ये एक्टिविटी पे डिपेंड करेगी. This depends on activity, because if we drive our car more, then we have to spend more money on maintenance and repairs. So if we will drive, then we will have some maintenance and repair cost. If we take the train, then the maintenance cost will be zero. What about the fifth option? Yes, sir. Parking fee at school. What about this one? Parking fee. सर ये भी एक्टिविटी पे डिपेंड करेगी. Parking fee is annual item. एनुअल आइटम पे सर स्कूल वो जा रही कार. Yes. ट्रेन को ये ऐसे है कि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी हमसे 500 रुपये पार्किंग फी लेती है. मैं आजकल कार पार्क नहीं वहाँ पे कर रहा, लेकिन स्टिल आई हैव पेड द फी. सो मैं पार्क करूँ या ना करूँ, मैंने साल की फी पे कर दी. ठीक है. सो दिस इज अनअवॉइडेबल. This has been paid already. This is sunk cost for me. So sunk costs are irrelevant cost, right? Yes. So if she parks car there or not, she still has to pay. If she takes the train, she still has to pay that parking fee. If she drives, she still has to pay that. ठीक हो गया. ये सारे हमारे पास कॉस्ट थी. तो हर जो भी आपको डिसीजन दिया जाएगा, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच कॉस्ट आर रेलेवेंट एंड व्हिच कॉस्ट आर इररेलेवेंट. ठीक है. ओके, देन वी हैव सम additional information over here. सिकंदर. यस सर, यस सर. जी, आप पढ़ें इसको पॉइंट नंबर 7 से. रिडक्शन इन रीसेल वैल्यू ऑफ कार पर माइल ऑफ वेयर. वेयर एंड टेयर जो होता है. जी बिल्कुल. तो इज इट अ रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट? सर रेलेवेंट है, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो सारी बात है किस लेवल पे So for ब्रेक each मारते हो. mile you will drive the car, $0.026 value of that car will decrease. So on driving that car, the car resale value will decrease. That's why this is a relevant cost. अगर हम ट्रेन पे चले जाते हैं तो हम इस कॉस्ट को सेव कर लेंगे. ठीक है. yes, sir. अगर हम ड्राइव करते हैं तो हमें ये कॉस्ट पे करना पड़ेगी. सो दिस कॉस्ट डिफर्स बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स. दैट्स व्हाई इट इज रेलेवेंट कॉस्ट. राउंड ट्रिप ट्रेन फेयर, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर ट्रेन में भी तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो होती है ना. नहीं, मेंटेनेंस हमने पे नहीं करी. वी डोंट ओन द ट्रेन. We don't have to worry about train maintenance.
So तो if we हमारे लिए drive, our fare is 0. We don't have to pay any fare, right? यस सर If we take the train, then we have to pay किराया the देना fare, which is $104. So relevant. this is changing between the two alternatives. That's why it is relevant cost. Relevant. यस What about next? Benefits of relaxing on train trip. So if you are driving, डिपेंड you have to be active. You will be tired. But if you are going on a train, you can sleep on the train, right? You can relax. You can read a book, whatever you want. So what about this one? Is it relevant or irrelevant? इररिलेवेंट Irrelevant सर कैसे इस हुई? इस तरह तो वो कार में भी वो स्टॉप करके थोड़ा होटल पर रेस्ट कार करना में स्टिल उसको सर खुद आपके ड्राइव पास करना पड़ेगी. सर अगर ड्राइव करते हुए आपके आप पास रिलैक्स नहीं कर सकते. अगर टेस्ला है आपके पास तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स ठीक है. वो शायद जब वो इतनी कॉमन हो जाएगी तो उसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी. अभी वो इतनी कॉमन नहीं है, तो सिकंदर प्लीज we can only dream of सिकंदर that बोल one. पड़ा है तो सारों को जाग आ गई अब हाँ, यार जब ठीक है. टेस्ला आ बेसिकली जाएगी क्या ना है फिर कि बंद हो जाएगी। क्योंकि दोनों ऑप्शंस में चेंज हो रही है, तो दिस इज अ रेलिवेंट कॉस्ट, लेकिन हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि हम जो रिलैक्स करेंगे उसकी डॉलर्स में क्या वैल्यू होगी. वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू क्वांटिफाई. ये एक किस्म का क्वालिटेटिव मेजर है कि हम रिलैक्स करेंगे, वी विल बी कितना सेटिस्फाइड और व्हाटएवर, बट हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है. कितने डॉलर्स का हम रिलैक्स करेंगे? वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म. सो रेलिवेंट है लेकिन क्वांटिफाइबल नहीं. सर अपने रिलैक्सेशन पे तो कुछ लगा सकते कीमत जो रिलैक्सेशन में यूज हो। हाँ, नहीं, हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, कीमत नहीं है ऐसी. ठीक है. सिकंदर, पॉइंट 10. पॉइंट 10 कॉस्ट ऑफ पुटिंग डॉग इन केनल व्हाइल गॉन. ठीक है. ये एक किस्म की एनिमल नर्सरी है. ठीक है. सो एनिमल केयर सेंटर. ठीक है. तो जैसे if you are gone, you can put your dog there. तो इसके बारे में क्या देखभाल ख्याल के है? Is it देखभाल के relevant or पैसे लेके irrelevant? इररिलेवेंट Irrelevant cost है, because दोनों केसेस में cases आपने में अपने डॉग को वहां देख- पुट करना ही करना है, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप जो है ट्रेन पे ट्रेन जाओ. के जरिए जा रहे हैं. You have to bear that cost in any way. So it is irrelevant cost because it doesn't differ between the two alternatives. Option 11. benefit of having car in New York. इसके बारे में क्या ख्याल है? जी, बेनिफिट्स. अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको टैक्सी लेना पड़ेगी जाके न्यूयॉर्क में. ठीक है. आपको वेट भी करना पड़ेगा. आपको शायद टैक्सी पसंद भी ना आए, स्मेली टैक्सी हो, डर्टी हो. होती है न्यूयॉर्क में, then it will help you in commute. But if you don't have a car, then you have to take the taxi, which you may not Sir. like. तो ये भी relevant तो है, but it is still unquantifiable, क्योंकि हमें सर नहीं पता कि हमें डिपेंड जो डिपेंड करता है ना ये हाँ वेरी डिपेंड करता करता है. है ना. लेकिन हमें तभी तो या तो हम relevant है। कैलकुलेट करेंगे व्हाट वी विल पे टू द टैक्सी, वो चीज़ हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. लेकिन जो हम वेट करेंगे उसकी वजह से जो गाड़ी की अगर सिचुएशन अच्छी नहीं है उसकी वजह से हम सफ़र करेंगे, तो इन चीज़ों को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते. सो सम पार्ट ऑफ इट इज़ क्वांटिफाइएबल बट नॉट ऑल. ठीक है. Yes. लेकिन ये भी रेलिवेंट है. नंबर 12. hassle of parking car in New York. ठीक है. तो ये भी एक रेलिवेंट है.
अगर आपके पास Yes. आप ट्रेन से जाते गाड़ी हैं है तो तो आपको इस ट्रबल की ज़रूरत नहीं है. बट इफ़ यू ड्राइव देन you don't know how hard it will be to park in a New York, how much you have to suffer. So because we cannot quantify it, we don't know exactly, so it is relevant cost but unquantifiable. ठीक है, आप सिर्फ पार्किंग की फ़ी तक तो कर सकते हैं कि दैट मच यू हैव टू पे टू पार्क अ कार इन न्यूयॉर्क, उसको तो आप कर सकते हैं क्वांटिफाई, लेकिन आपको उसको ढूंढने के लिए पार्किंग को कितना ट्रबल होगा, कितनी अच्छी पार्किंग मिलती है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं, आपने जहाँ पे जाना है उसके करीब है कि नहीं है, ऑल दीज फैक्टर्स यू कैन नॉट क्वांटिफाई. Point 13. sir, per day cost of parking car in New York, So if you will take a $25. car, then you have to pay this fee. If you are going by a train, then you don't have to pay this fee, right? So Well, it's a differential cost between two alternatives. That's why it is relevant cost. So these are all the discussion about these costs which we just did. Shabib Zadi. Which costs and benefits are relevant in Sandhya's decision? The cost of car is a sunk cost and is not relevant to the current decision. The annual cost of insurance is not relevant. It will remain the same if she drives or takes the train. Explain करो. Okay, next. However, the cost of gasoline is clearly relevant if she decides to drive. If she takes the train, the cost would not be incurred, so it varies depending on the decision. G, next. The cost of maintenance and repairs is relevant. In the long run, these costs depend upon miles driven. The monthly school parking fee is not relevant because it must be paid if Cynthia drives or takes the train. At this point, we can see that some of the average cost of $0.569 per mile are relevant and others are not. ठीक है, so you can read all these other points we have just discussed. So if we quantify all of these costs and combine all the relevant costs and irrelevant costs, we will have this one. So अगर हम जो है ड्राइव करते हैं, then we have to pay the gasoline cost. So we have to drive 460 miles. So 230 miles to go New York and 230 miles to come back. And cost of gasoline per mile is 0.05. So total cost will be $23. Similarly, we have to pay some maintenance cost. There will be some reduction in resale value. We have to pay some parking fee in the New York. The total cost of driving will be $114. $114.86. And if we So ये take a train, round trip है दोनों साइडों का ना. yes, it is a round trip. That's why we have 460 miles. So one side is 230 miles. समझ आ गई? सिकंदर? So round trip train fare is 104. So from here we can see the train trip is cheaper and driving by car is expensive. So Cynthia will be better off taking the train. सर ये हमें रेलिवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट के बाद सर ये वाली स्लाइड थोड़ी सी समझा दें कि किस तरह हमने निकालना है कि कौन सा हमारे पास एक्सपेंसिव और कौन सा चीपर है. ठीक है, बेसिकली क्या है, जहाँ हमें सारा डेटा गिवन है, ठीक है, Yes, sir. जहाँ पे हमने बात की कि जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा इररेलेवेंट कॉस्ट है, तो लिहाजा हमें इसकी अकाउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन जस्ट इग्नोर
irrelevant cost. We have to account only for relevant cost. Relevant cost में जो पहली cost है हमारी वो कौन सी है? Cost of gasoline. अगर हम ड्राइव करते हैं तो हमें ये कॉस्ट पे करना पड़ेगी. अगर हम ड्राइव नहीं करते और ट्रेन से चले जाते हैं तो हमें ये कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगी. और ये कॉस्ट कितनी है? ये है $0.05 पर माइल है. तो क्योंकि वो राउंड ट्रिप कर रही है सिंथिया, तो उसके फ्लैट से लेके उसके दोस्त के फ्लैट तक जो डिस्टेंस है वो 230 माइल है. तो टोटल जो डिस्टेंस उसने करना है 230 माइल टू गो टू न्यूयॉर्क एंड 230 माइल टू कम बैक टू हिज होम. 460 माइल उसने टोटल डिस्टेंस करना है. और एक जो माइल है उसकी जो कॉस्ट है गैसोलीन की वो है 0.05. हम इन दोनों कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गैसोलीन की जो कंजम्पशन होगी वो आ जाएगी. ठीक है, तो वो कितनी आ रही है हमारे पास? वो है $223. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी आपने इसी तरह निकाल लेनी और उनको जमा कर लेना जो ड्राइविंग के केस में होगी. और अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो हमें सिर्फ एक जो है राउंड ट्रिप की टिकट देनी है और हमारी कोई कॉस्ट नहीं. ठीक, तो इन सारी कॉस्ट को टोटल कर लें. सेकंड ऑप्शन की सारी कॉस्ट को टोटल कर लें. जिसकी कॉस्ट कम आ रही है उसको जो है आप चूज कर लें. ठीक है सर. सर आ गया समझ.